ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकम् I also want to ask you that you are a highly spiritual and intuitive person. Many of our viewers must have seen your episode regarding your brother, Anupam, which was such a beautiful episode. And if you haven't seen it, please go back and see her episode because you will really get some great insights there also. So, Apurva, once daddy passed away, have you got any signals, any intuitive messages, anything that has come to you? Uh, One thing which kind of shocked me was at the time of Anupam, his energy, as shared in my previous episode of Mrityunjay, his energy was very vocal. He was, because he left very young, his energy was always conversing in some way or the other. Hmm. But with Papa, I don't feel his energy around. Honestly, I don't. Right. And somewhere I'm getting those messages that he has transcended, he has moved to higher realms because he was already a very spiritually evolved soul. He knew about karma theory. He always taught me about karma since childhood. He was a very emotional person, highly empathetic, and he was always connected with Baba. Any prediction he used to give, he used to say, साईं ऐसा कह रहे हैं, साईं ऐसा बोल रहे हैं, साईं ऐसा चाहते हैं, साईं की इच्छा, साईं इच्छा. हर बात में बाबा होते थे उनके. So I have a feeling because I don't feel his presence at all. Right. एंड वो बोलते हैं ना कि किसी का पीछा जाने के बाद थोड़ा नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है. पापा का बहुत हल्का और बहुत बहुत लाइट, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है कि मेरे को फील ही नहीं होता कि मतलब कुछ बदगमनी और वो कहते हैं ना थोड़ा सैड एटमॉस्फेयर हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं है. बहुत लाइट है, पॉजिटिव है एंड ग्लूमी नहीं है. एंड आई it's something different that I don't feel his presence of energy around, because with Anupam I used to communicate to his energy. Right. And generally also, abhi to kam ho gaya, I used to be aware of places where any energy exists, negative or positive, pata lag jata hai, and I become sensitive of that. But with Papa, his energy is not here. Only once I dreamt of him where he said that in a very smiling way that I'm very happy wherever I am and I can see him. With him, he meant Anupam. I Ah. can see him and he's okay, he's doing good, and he's with me sometimes, but he's on another level, I'm on another level. And he made a sign, like he made a dollar and cut it in between. I don't know what is that sign. I spoke to one of the mediums you had interviewed, Nishan. He
he told me that this sign might be one of the Kundalini signs. And he also helped me a lot in getting answers for my dad, because I had this query if Papa had to say anything at the last time when he was leaving his body. Was there anything he wanted to speak? Because he was unable to speak. He was trying to take his last breath. And again, Nishan did not know how he left. He got the message from Baba, and one of his guides, he mentioned that dad wanted to tell me that they have come. Dad didn't tell it to Nishan who came. Dad said that they have come and they are here to take me. पापा ये बोलना चाहते थे मेरे को. So निशान ने ये बात बताई and निशान को नहीं पता था that Papa saw someone. And suddenly when I asked this question that Papa क्या कहना चाहते थे, but Papa, so he said that उनको उस टाइम सांस नहीं आ रही थी, उनकी हालत बहुत खराब थी, उन्होंने हमें देख लिया था कि वो, और पापा कहना चाहते थे कि वो आ गए हैं. So this was the message which Nishan got from his guides and my guide, and it was very relieving for me that okay, पापा ने accept कर ली थी वो चीज और वो happily he left the place. Yes, And ये जो लोग बोलते हैं ना कि अभी 13 दिन तक यहीं होंगे, 1 साल तक यहीं होंगे, I don't think my father's energy is here. right. He I must have, can't feel it. yeah. He So has there are- transcended. correct. So there are certain souls who don't need to be around because they're at a higher realm. So especially these souls who are able to see their guides come to receive them, they will immediately leave. They're not going to be around here. So that's why you don't feel him around. And the symbol that you said, the He dollar made a sign, dollar and cut. S and cut. Cut. So if you look at S, like the dollar sign is like an S. S is half of 8, Okay. right? अगर मैं double S करूँगी ऐसे उल्टा ऐसे करके, तो it will become infinity, Infinity. Yeah. right? But ये आधा S है, Yes. and center से cut, Cut. indicating that they are at a realm, maybe like the 7th realm, Wow. okay, where they are training themselves to be better at what they're going to do next, and they're also able to guide others who are going to move up. So I think that's where your dad seems to be, and he's not yet reached the 14th realm is the highest realm, right? वहां तक नहीं पहुंचे हैं, but he's at the 7th or 8th realm, and that's where the guidance is being taken and given to others. So he is at this moment learning and guiding others who are now possibly approaching that realm. So that's a very interesting thing you've said, Apurva, that you can't feel his presence. ये बहुत ही important चीज तुमने बताई है, because he saw somebody come to receive him. So he was at that moment, he was not in grief, he was not mourning, he was not attached, right? He had moved to that point of being disattached. And so when the guide must have come to receive him, he must have automatically left with him. So you do not feel his presence around. जरूरी नहीं है कि जो इंसान people who pass away, you will always feel their presence. It's not necessary. It depends at the level of their vibration. कि जो vibrational frequency है, that is what you will feel. So if your father is left, and he doesn't need to connect to you because he told you exactly whatever you needed to learn and know. So there was no requirement for him to connect to you further. Right. Because this is very unlikely of his nature. Yes. He was someone who was so attached to his relatives. He, loved conversing with his nephew, his niece. He was so attached to his family.
and they like especially Kaku Bhaiya, they both used to talk to each other every day on astrology, like discussing case, discussing music. And because my father was a musician also, he was a drummer, and he played drum for around 20 years of his life. And so there was so much life around him, music and astrology and homeopathy, and he used to connect homeopathy with astrology also as a hobby. And he used to give medicines, like he take on his own sometimes, but after a lot of research and consulting with a doctor. He never used to become self like doctor on his own, but he used to love all this. And the number of followers he had, like people used to be crazy after him for remedies and astrology predictions, and they used to come true. Because वो ये बोलते ही नहीं थे कि मैंने प्रिडिक्ट किया, वो बोलते थे साईं बोल रहा है, साईं बुलवा रहे हैं मेरे से। Very nice. वो कभी भी कहते थे कि मैं हुई नहीं कुछ कि मैं प्रिडिक्ट कर पाऊं, बाबा बुलवा रहे हैं। सो हिज प्रिडिक्शंस यूज्ड टू गो राइट। So अपूर्वा, ये तुम जो कह रही हो ना, ये बहुत important है. He was not attached, in the sense he did not have an ego about his work or about his predictions or about whatever he did, right? So when you live egoless, it is very easy for you to become unattached. So तुम्हें Right. लग रहा है कि वो बड़े attached थे, attached नहीं थे वो. He was enjoying meeting Yeah. family members, doing his work. He had a great joy in him. But he was not Right. attached to people. Right? So the ego had reduced to such an extent that when he had to leave with Sai, he just left. There was Yeah. no requirement for him to continue here because he already knew where he was going. Right. उन्हें पता था कि उसे जाना कहाँ है अभी आगे, है Hmm. ना? तो मैं तो यही कहूँगी that there are many people who've lost their loved ones, and sure we will grieve for them because we are so attached to their physical form. हमें Yes. पापा दिख नहीं रहे हैं, दिख नहीं वो रहे। ऐसे मुस्कुराते थे, वो ये चीज खाते थे, उन्हें ये पसंद था. These are all memories. Right. You are remembering him because you have memories. Right. Right? That is why, which is natural for a human being to do. But those people who have left, we have to just pray that they find a better place, whether their desires and dreams are fulfilled. Right. And that's the way we have to be with them who have left. You pray for their um, better life. If they had something that they wanted to experience, that they should experience, that's Right. important, right? And you loved Right. him so much, Yes. Apurva, right? So you can Yes. just tell Papa every day to the soul that I'm going to credit to you 50% of all the love I have. So he will get your credit. पता है पूर्व जीवन में what was their debit था, कर्ज था, डेबिट था। है ना? तो इस जीवन में तुम अपने पापा को क्रेडिट कर सकती हो. तुम कह सकती हो मेरे अंदर जो इतना सारा प्यार है उसका 50% मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ. So this is how you can pay back. Yes. And he will also feel so good about it. So it's very important, Apurva, that you're slowly recovering. Your mom is there. She's also, she fought COVID because she wants to be with you, right? And you're now getting a little healthier also. So that's a good thing. तो आज पापा का बर्थडे है और दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट ही इज नॉट विद अस एंड very disheartening and the vacuum is very bad. It cannot be filled, the void cannot be filled at all. और आज मेरे साथ तो मेरे दोनों cousins हैं,
अनुराग भैया और रुचि सक्सेना, मेरी कजन मिन्नी दी, जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया कि मेरे पापा सबसे ज्यादा इन दोनों से ही बात करते थे और बहुत क्लोज थे, और काकू भैया से स्पेशली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। और जब से वो रिटायरमेंट के बाद एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा अच्छे से कर रहे थे प्रैक्टिस, तो भैया के साथ डेली बात करना, डेली डिस्कशन होता था। और हम जब भी अपने काम से आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो हम देखते थे पापा फोन पे हैं और किससे बात कर रहे हैं, काकू भैया से। तो सबसे ज्यादा क्लोजली भैया आजकल थे। और कई बार हमसे पापा हमारी बातें हमें भी नहीं बताते थे, काफी वो दीदी से या भैया से शेयर करते थे। और मेरे से कभी नोक झोंक होती थी, मूड खराब होता था, तो इन दोनों को बता देते थे कि आज अपूर्वा ने ये किया या आज वो किया। छोटी छोटी बातें होती थी, एंड हम भी समझते थे कि हर चीज हमसे शेयर नहीं कर सकते। सो अनुराग भैया ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। नहीं, ऐसा है कि हम लोगों की बेसिकली, मैं तो I will take all of you to the, after 40 years back, like when 40 or 45 years back, when we all were we all were living in a joint family. हमारे अपनी एक जॉइंट फैमिली थी, क्योंकि मैंने वो चीज़ें देखी, तुम लोगों में से किसी ने नहीं देखी होगी। मिन्नी बहुत छोटी थी, रुचि जो है अभी जो है वो बहुत छोटी थी। आई डोंट थिंक दैट शी रिमेंबर्स, अगर है भी तो वो बहुत बात की बातें मोरीगेट में, तो उसको भी नहीं पता, बिकॉज हम लोग ही छोटे थे, तो इनके तो ये लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। तो जो बॉन्डिंग थी हम लोगों की, वो इस वजह से मेरी ज़्यादा थी, जैसे जो मेरी चाचाओं से ज़्यादा है, क्योंकि मैं इनके बाद मैं ही पैदा हुआ था घर में। तो आई वॉज द फर्स्ट, मेरी जनरेशन में आई वॉज द एल्डेस्ट वन। तो सबका अटैचमेंट था मेरे से, सबका प्यार था, सब लोग बड़े क्लोज थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते गए, तो बीनू चाचा जी से हमारी इसलिए हम, लेकिन उनको बीनू बोलते थे घर में, सब उनको बीनू बोलते थे घर में। नोबडी कॉल्स हिम अरुण, एवरीबडी कॉल्स हिम बीनू, बिकॉज घर का नाम था उनका। तो हम भी उन्हें बीनू चाचा जी के नाम से ही प्रचलित थे घर में, सब उनको बीनू चाचा जी बोलते थे। तो ही इज लाइक रिदम में शुरू से रहे हैं, वो म्यूजिक में हमारे घर में था ही, हमारी दादी की वजह से, तो पापा की वजह से मेरे, मतलब लाइक जब हम क्लोज वहाँ पे जब जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, तो बकायदा ये था कि एवरीबडी वाज टाइटली बॉन्डेड, बिकॉज रीजन भी सब लोग साथ खाना खाते थे, सब लोग बैठते थे। और हमारे चाचाओं में से जो रम्मी चाचा जी, उनका ये था संडे का दिन बड़ा, उनका संडे का दिन बड़ा क्रिटिकल होता था, 2:30 बजे तक वो नहाते नहीं थे, देन दिस एंड दैट। तो ये, और बीनू चाचा जी को डांट बहुत पड़ती थी घर में, वो ही यूज्ड टू टॉक अ लॉट विद हिज फ्रेंड्स। तो हमारे जो दादाजी थे वो गुस्सा करते थे उनको, वो तौलिया लपेट लेते थे बीनू चाचा जी, और वो खड़े होके बात करते थे। तो हमारे जो दादाजी थे वो बहुत गुस्सा होते थे। आई स्टिल रिमेंबर दोज मेमोरीज, बिकॉज दे आर इन माई माइंड, मेरे दिमाग में अभी भी मोरी गेट वाला भूला नहीं। खैर, समय बीतता गया, ही हैज स्ट्रगल्ड फॉर लाइफ, लेकिन वो बड़े फाइटर थे। उनकी कुछ तकलीफें भी हुई, उनको बीमारियां भी हुई, उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, कुछ उनके ऑपरेशंस भी हुए थे, चीरा वीरा लगा था उनको, क्योंकि कुछ थी प्रॉब्लम। बट वी ऑल हम लोग सब अपनी दादी पे गए हैं, हम लोग सब बड़े हार्ड वर्किंग, हम लोग बहुत ज़्यादा ना सहन कर लेते हैं, हम चीज़ें स्ट्रगल करके निकल जाते हैं। हमारी दादी भी ऐसी थी, मेरे चाचा भी सारे ऐसे ही हैं। तो वैसे ही मेरी नेचर है कि ऑड आवर्स में, चाहे मेरी जॉब की प्रॉब्लम काफ़ी रही, तो उसके साथ साथ तो आई वॉज, वी ऑल हैव दैट, वो हमारे डीएनए में वो चीज़ है, वी हैव दैट इन अवर डीएनए, दैट हाउ टू डू द स्ट्रगल एंड कम आउट। तो अभी जैसे बीनू चौधरी से मेरी बहुत क्लोजनेस थी पिछले 1 साल में, लॉकडाउन के दौरान डेली बात होती थी। अच्छा, अब वैक्यूम इसलिए लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकली मैं किसी से डिस्कस नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरा वैक्यूम लगता है म्यूजिक का, कि जब हम कोई म्यूजिक का कोई भी वीडियो आता है, या पहले क्या होता था, कोई भी म्यूजिक का वीडियो या रिदम से रिलेटेड कोई चीज आती थी, तो इमीडिएटली मैं उनको फोन करता था या मैं उनको शेयर करता था व्हाट्सएप पे। तो वो बोलते थे हाँ यार ये चीज अच्छी है, या वो बहुत शेयर करते थे मुझे AR रहमान की, तो मैं हम उस पर फिर हमारा डिस्कशन होता था। कभी कभी हमारी बहस भी हो जाती थी, कभी कभी हम लड़ते भी थे, मतलब ऐसा नहीं है लड़ना इन द सेंस कि वो प्यार वाली लड़ाई होती थी एक बातों में। हाँ, वो जो एक दूसरे के ना मत नहीं मैच करते थे, मतलब कि वो कुछ कह रहे हैं मैं कुछ कह रहा था, तो हम दोनों के ना जो स्कूल थॉट्स थे ना, वो मिलते नहीं थे, तो हमारा बहस होता था। लेकिन वो ठीक था, इट वाज ऑन द पॉजिटिव फ्रंट। बट ये है कि अटैचमेंट तो थी ही, और मैं तो अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ कि मैं 10-12 दिन पहले उनसे मिल लिया, और रम्मी चाचा जी से मिलने गए थे,
एक हफ्ते के बाद मैंने मम्मी से ही बोला, मैंने मम्मी अब आप, क्योंकि भाई हमें मम्मी का भी ये लगता था कि भाई ये इन दिनों में कोरोना वोरोना चल रहा है तो ज्यादा इनको ना निकालें। तो देन शी सेड कि नहीं यार वहां मिल के आए लाजपत नगर, तो चलो एक दिन प्रीतमपुरा का बना ले। तो हमने अगले वीक बनाया एंड ही वाज आल्सो क्वाइट Very happy and excited. हैप्पी तो थे ही वो, बट ही वाज मोर इंक्लाइंड कि मैं भाई साहब से मिलना है मेरे को। तो मैंने जब उनको फोन किया रास्ते से कि वो ताऊ जी हाँ से मिलना चाहते हाँ, थे। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा चाचा जी मैं मिलने जा रहा हूँ। जब हम सुबह हमारा प्रोग्राम बना, मैंने कहा आपका क्या प्रोग्राम है? कहता है यार तू पहले बताता तो मैं नहीं बनाता, अपूर्वा का वहाँ प्रोग्राम बना हुआ है। तो मेरे से पहले कहते रहे कि काकू यार बना ले प्रोग्राम लाजपत नगर का। मैंने कहा अच्छा बनाते हैं। तो मिन्नी से बात हुई, मिन्नी कहने लगी कि नहीं भैया आ जाओ, खाना वाना यही खाना। मैंने कहा नहीं यार खाने को तो नहीं पता, बट चलेंगे, नहीं खाना यही खाओगे। एंड एज यूजल घर है यार, मतलब उसमें कोई इतनी फॉर्मेलिटी नहीं है। तो ही वाज, उनको थोड़ा सा था दिमाग में कि भाई मैं चलता, तू अगर मेरे को पहले बोलता तो यार मैं भी आ जाता तो हम लोग मिल लेते, क्योंकि मिल नहीं पा रहे थे ना कोरोना की वजह से। ये गैप बढ़ता जा रहा था, सबके गैप बढ़ रहे थे। तो हम उनसे मिल लिए, बहुत अच्छा रहा, बड़े खुश थे। वी हैड, आप तू भी थी वहाँ पे और सारे लोग थे हमारे, जय था, एवरीबडी एंजॉयड, वी एंजॉयड ड्रिंक्स, वी एंजॉयड नॉनवेज देयर। जो उनकी जो अच्छा पता है, एक मैं बड़ी अच्छी चीज तुम्हें बता रहा हूँ कि जो तुम्हें शायद नहीं पता, कि तुम्हारे यहाँ अभी आने से पहले क्या हुआ कि मेरे मन में थोड़ी सी ना दुविधा आई कि यार कोरोना फैल रहा है, हम नहीं जाते हैं। मैंने कहा मम्मी आपकी एज है, आपको मैं ले जा रहा हूँ, और कहीं ऐसा ना हो उनके घर में भी छोटी बच्ची है, हम लोग नहीं जाते। तो मम्मी ने बोला भी मैं नहीं जानती, तू जान, तेरे चाचा जाने। शी सेड लाइक दिस ताई। तो मैंने ना थर्सडे ऐसी ना उनका मन लेने के लिए मैंने मम्मी को थर्सडे बोला। फिर मैंने ना रात को मैंने कुछ नहीं कहा चाचा जी से, मैं चुप रहा। मैंने कहा यार अभी नहीं कुछ कहते। जैसे ही मैंने नेक्स्ट टाइम मैं उनसे बात करने की सोच रहा था तो उनका मैसेज आया कि वेजिटेरियन में क्या खाओगे, क्योंकि मैं जय तो नॉन वेजिटेरियन थे। तो मैंने बोला यार, मैंने मम्मी से पूछा, मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी अब तो जाना पड़ेगा क्योंकि चाचा जी बहुत एक्साइटेड है। मैंने कहा अब मना करने का मतलब है दैट कहानी खराब हो जाएगी, वो गुस्सा करेंगे फिर कि यार मैं तो तैयारी से बैठा हूँ और तू तू मना कर रहा है, आजा थोड़ी देर के लिए आ जाइए, जैसे वो बोलते। तो यार ओवरऑल कहने का मतलब है हम सब लोगों में बड़ा प्यार था, है, बड़ी बॉन्डिंग थी। और मेरे से इस वजह से थी, जैसे मैंने बताया कि मैं सबसे पहला बच्चा हुआ था घर में बीनू चौधरी के बाद। आई वॉज द पर्सन हु वाज बोर्न, मैं बेटा था घर में। तो हम लोगों को थी अटैचमेंट, हम लोगों से, मेरे से बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी। फिर हमारा म्यूजिक में आ गया, म्यूजिक में भी ये प्रैक्टिस कराते थे पापा को, मैं भी करवाता था। बाद में चाचा जी दूर हो गए तो मैं करवाता था। फिर हम एस्ट्रोलॉजी में आ गए। पिछले 3-4 सालों से एस्ट्रोलॉजिकली वो मेरे से बहुत क्लोज थे। एक एक चीज मेरे से पूछते थे क्योंकि उनको पता था मैं रिसर्च कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी में। तो मुझे उसमें नक्षत्रों में तो मुझे बोलते थे कि काकू तू बहुत आगे निकल रहा है, तू लिखना शुरू कर। Why don't you start writing? Why don't you start writing and why don't you create your own आपके channel आर्टिकल्स and मेरे से भी शेयर करते थे, हाँ। आर्टिकल्स नक्षत्र। तो हाँ, तो फिर वो रहा यार, देखो वैक्यूम तो है ही। अब उस वैक्यूम तो मैं तो बड़ी सिंपल चीज जानता हूँ, मेरे को तो अभी भी ऐसा लगता है कि उनका फोन आ जाएगा या मेरा कभी कभी हाथ चला जाता है, क्योंकि सैटरडे संडे तो बात होती ही थी, लेकिन उसके दौरान बीच में भी मेरी बात उनसे डेली ही होती थी। क्योंकि उनको पता था कि काकू का फोन नहीं आया तो कोई ना कोई बोल ही देता होगा कि आज भैया से बात नहीं हुई, या मेरे से बात होती थी तो फिर लंबी होती थी, कभी कभी आधा घंटा, कभी कभी पौना घंटा। या ताई जी से तुम्हारी बात होती थी तो ताई जी से बात भी बहुत लंबी होती थी। जब वो फोन करते थे तो ताई जी से भी बहुत लंबी बात होती थी, अपनी मन की बड़ास निकाल लेते थे। तुम्हारे से कोई बात होगी तो भी कहते थे तेरे को तो पता है यार हमारे घर की लड़कियां कैसी हैं, और ये वो खूब ऐसे ऐसे खूब सुनाते थे यार। मैं क्या बताऊं, बस जैसे उनका एक स्टाइल था ऐसे ही बोलते यार, थे। मैं क्या बताऊं यार तेरे को, बस यार काकू बस मैं बोल नहीं सकता, बस तेरे को कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं तेरे से कह नहीं सकता। तो दिस इज हिज स्टाइल। वो मेरा भी वही स्टाइल है। बच्चे अगर मतलब मेरे को मम्मी और वो वर्षा बोलती है कि आप कभी कभी जब परेशान होते हो तो मैं उनको समझाता था। मैंने कहा अरे चाचू जी कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोनों ऐसे कर, अब वो अगर गुस्से में बोलते थे कोई तीसरा बंदा सुने हम दोनों की वार्तालाप तो बोले नहीं लड़ रहे हैं आपस में, लड़ रहे। हाँ? तो हमें तो आदत पता थी, बोलते जोर जोर से थे। बहुत जोर से बोलते थे। साला मैं तेरे को ऐसे दांत बीच के मैं तेरे को क्या बताऊं। अनुपम बहुत अच्छी एक्टिंग करता था पापा की, मेरे को अभी भी याद है। हम अनुपम से एक्टिंग करवाते थे कि अनुपम पापा दांत कैसे बीचते, तो अनुपम पूरी एक्टिंग करता था कि भैया पूरे आंखें घुमा लेते हैं, पूरे दांत बीचते थे। हम उससे वो कॉपी करवाते थे अनुपम से। तो अब वो उनका स्टाइल था। अब वो गुस्से में होते थे, मेरे को भी कई बार डांट देते थे, कोई बात होती थी मैं बच्चों को लेके, जय को लेके, किसी कृष्णा को लेके या जय को लेके कभी कभी मैं बोलता था कुछ तो मेरे को डांट देते थे। क्या बात है तू ऐसे क्यों डांट, क्यों क्यों ऐसे करता है, तू उन लोगों बच्चों को क्यों करता है, ये है बच्चे हैं अभी।
तो इस तरीके से तो ही यूज्ड टू मतलब मेरे को डांट देते थे। एक्चुअली भैया बट मैं ये ना है, ये सोच रही थी, जैसे आप और ताई जी और कृष्णा आए उस दिन, तो मैं ये जय जय, हाँ जैसे पापा बीमार हुए, हाँ हाँ कृष्णा है, जय आया था साथ। मतलब मैं ये सोच रही हाँ थी कि वो लास्ट का कार्मिक अकाउंट ना बचा था ताई जी के साथ, आपके साथ और जय से हाँ। मिलने का, बाकियों से पहले ही कार्मिक अकाउंट कट हो गया था, आपका अभी भी बचा था। आवाज कट रही है तेरी। हाँ अभी आ रही है? हेलो? हाँ अब ठीक है। हाँ देयर वाज सम नेटवर्क इशू, तो योर वॉइस वाज ब्रेकिंग एट दैट। नहीं वो एक्चुअली पता क्या था, अपूर्वा, अगर अगर हमें नहीं मिलना होता ना तो मैं मना कर देता उनको फोन पे, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या हो रहा था, मेरे दिमाग में बुधवार से ना नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि हमें नहीं जाना चाहिए, कि हमारे को नहीं जाना चाहिए, हम्म हमारे को क्योंकि मम्मी भी की भी एज है और और वहां केसेस पर बढ़ भी रहे थे छोटी तब। केसेस बढ़ रहे थे, छोटी बच्ची है। लेकिन अब रम्मी चाचा जी के जब जा रहे थे तो हमें, तब भी हमें लग रहा था यार वो अभी बट आए हैं भैया कैसे करें। आपको आपसे मैं स्पेशली इस इंटरव्यू में यही पूछना चाहती हूँ कि आपको पता है कि पापा अपने हेल्थ केस को लेके कितना परेशान थे, हेल्थ चार्ट हाँ के लिए, हाँ और उनको अंदेशा था। आई थिंक 2020-26 सितंबर जो अनुपम की सोल के साथ हमारे साथ हुआ था एपिसोड, बहुत ही डरावना भयानक, हाँ आप हाँ दोनों को पता है। हाँ तो उसके बाद से पापा बहुत घबराए हुए थे, बार बार कह रहे थे कि मेरी पत्री में 12वां सूर्य कुछ दिखा रहा है और उनके कुछ ऐसे प्लैनेट आ रहे हैं बार बार, और मेरे को वो शेयर नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं डरती थी बहुत, बट आप दोनों से वो कॉन्स्टेंटली पूछते रहते थे, और आपसे अपनी हेल्थ को लेके क्यों पूछते थे, ये बात मेरे को नहीं समझ आती थी तब, क्या था वो एग्जैक्टली? नहीं वो 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 एक्चुअली उनको ना पता था कि आ जाएंगे, मतलब 5 6 7 8 9 10। हाँ मकर में शनि चल रहा था एक, तो फिर बृहस्पति वहां पे आ गया। तो जब थोड़ा सा अपने अपने किडनी का ख्याल रखना, लिवर का ख्याल रखना, इन चीज़ों का ख्याल रखना, क्योंकि जुपिटर जब ऐसी जगहों से ट्रांजिट करता है तो ये तकलीफें देता है, थोड़ा सा आपको टमी से प्रॉब्लम दे सकता है, पेट से रिलेटेड। लेकिन दूसरा जो बड़ा क्रिटिकल था, जो उनकी डेथ का रीजन बन गया, वो था केतु उनके 4th हाउस में आया, तो वहाँ पे ऑलरेडी मंगल और मून बैठे हुए थे। तो जब केतु वहां आया तो वो थोड़े डरे हुए थे। तो देन लास्ट ईयर उन्होंने मेरे को बोला, लास्ट पिछले साल उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने मेरे को बोला यार मेरा कैसा है, तो मैंने बोला नहीं ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप ये करना, थोड़ा ध्यान रखना, ये दान कर देना। फिर मेरी बात हुई, इन्होंने फिर मेरी जनवरी में बात हुई, तब भी मैंने इनको टाल दिया, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा केतु का इलाज इलाज कर लेना एंड डू दीज रेमेडीज। फिर इन्होंने मुझे फरवरी एंड या मार्च के स्टार्टिंग में बहुत गुस्से से एक दिन मेरे को बोला, तब शायद इन्होंने मिन्नी को भी बोला होगा, मिन्नी कह रही थी कि मेरे से भी डिस्कस किया था। तो मार्च में ना ही वाज वेरी अपसेट व्हेन ही स्पोक टू मी एंड ही सेड के यार तू मेरा देखता नहीं है, मेरा 2 3 बार इन्होंने देख काकू मेरा कार्ड देख लियो, तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने नहीं देखा। फिर इनका एक दिन स्पेशली फोन आया दिन में कि काकू तू मेरा कार्ड नहीं देख रहा, मेरा कार्ड देख यार, और फिर मेरे से बात कर। मैंने कहा चाहिए, अच्छा मैं देखता हूँ, मैंने कहा अभी रुक जाओ मैं खोल ही देता हूँ। तो मैंने उनका कार्ड खोल लिया। मैंने बोला, मैंने कहा हाँ चाहिए, देखो उनको राहु की भी महादशा चल रही थी, राहु उनके छठे घर में बैठा हुआ था, वहाँ शनि भी बैठा हुआ था जो कि 8th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है, और चंद्रमा इनके 12वें घर का लॉर्ड है, वहाँ केतु आ गया था, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स ऐसे थे। लेकिन हमने उस समय ये नोट नहीं किया, क्योंकि कोई भी इतना नेगेटिव नोट नहीं करता ना, हम नोट करते हैं कि यार ये साथ ऐसा हो जाएगा। तो अब बेसिकली मैंने वो नोट नहीं किया, मैंने उनको सिर्फ इतना बताया, मैंने कहा ठीक रहेगा, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम्म। भाई ही विल, इनके प्राण हाँ। नॉलेज नहीं होगी इतनी, या मुझे एक्सपीरियंस नहीं होगा डेथ को देखने का। हमें पता तो था छठे का 8वें का और 12वें का रिलेशन बन रहा है, हम्म। लेकिन मैंने वो चीज नहीं देखी, मैंने इग्नोर करी। मैंने कहा चाचा जी पूजा पाठ आप करते हो और ये रेमेडीज आप करो, तो आपको रेमेडीज, लेकिन वो रेमेडीज में इतना मानते नहीं थे, क्योंकि वो जिस स्कूल थॉट ऑफ स्कूल से सीख के आए थे ना, वहाँ पे रेमेडीज में इतनी वो नहीं थी, वो औरों को करवाते होंगे। तो हाँ। मैं रेमेडीज में बड़ा बिलीव करता हूँ, मैं करता भी हूँ, अपनी भी करता हूँ, और मैं बहुत बिलीव करता हूँ। तो मैं उनको एक ही चीज बोलता था, मैंने कहा चाचा
कि केतु की रेमेडी करो। और बाकी मुझे ये नहीं पता था कि मिन्नी से इनकी शायद बात हुई थी, मिन्नी से भी इनकी बात हुई थी, तो मिन्नी बता रही थी मेरे को बाद में कि भैया मेरे से भी डिस्कस कर करा था इन्होंने, और बहुत परेशान थे। और इन्होंने मुझे ये नहीं बोला था कि यार मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा या मेरा बचूंगा या नहीं बचूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोला था। इन्होंने मुझे यही यही बोला था कि मेरे को ना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा मेरी सेहत को लेके, तो मैंने इनको ये बहुत बोला था। टेंस थे वो, और मेरे को ऐसे बोल रहे थे कि तुम्हें क्या पता मैं क्या क्या उपाय कर रहा हूँ, तुम सोच नहीं हाँ सकती मैं क्या उपाय कर रहा हूँ। तो मैं ना थोड़ा परेशान थी मार्च में, और बेचैनी मेरे को भी मार्च में शुरू हो गई थी, एंजाइटी शुरू हो गई थी कि, और पापा को मैं देखती थी कि ये क्या हो रहा है, पापा ऐसे क्यों डाउन 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 फील कर रहे हैं आजकल, और आंखें पापा के अंदर जा रही हैं धीरे धीरे सोच में। तो मम्मी को भी शेयर नहीं करते थे। मिन्नी दीदी आपको याद होगा, आपका मैं अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ, आपको याद होगा पापा आपसे शेयर करते थे कि मेरे को सपने आ रहे हैं बुजुर्गों वाले, मेरे को सारे बड़े बुजुर्ग दिख रहे हैं। अनम्यूट करना है आपको। आपको याद होगा कि पापा कैसे आपको बताते थे कि मेरे को अम्मा दिखी और दादाजी दिखे, और एक दिन पापा को सपने में दादाजी दिखे थे, वो उनके साथ लेट गए और कहा कि वीनू आजा मेरे साथ लेट जा। आपको याद है वो पितरों का कनेक्शन, जब पापा को 2 महीने से आ रहे थे सपने और सारे दिख रहे थे, ताऊ जी भी बुआ भी, तब आपको वो शेयर कर रहे थे, क्या था एग्जैक्टली वो? दीदी हाँ हेलो। हाँ, आप आवाज आ रही है? मेरी आवाज, हाँ मेरी हाँ मेरी आ रही है? हाँ हाँ। मुझे तो लगता है नेट की प्रॉब्लम है, मिलने गया। हाँ, तो हेलो। मैं ना ये एक्चुअली चाह रही थी कि आप बताओ कि वो कौन सा टाइम था हाँ जब पापा। नहीं मुझे वो टाइम ऐसा था जब वो मुझे कहते थे कि मुझे बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं, हम्म, पुराने लोग, कुछ ऐसे ऐसी आकृतियां दिखती हैं जो ऐसा लगता है कि वो हमारे पूर्वज हैं। हम्म, तो मैंने उनको कहा कि भी हो सकता है ऐसा हो, आपको इस किस्म के कोई ड्रीम्स आ रहे हो। तो मैं क्योंकि आजकल मैं भी एक ऑकल्ट प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे कि आपको ड्रीम्स आने बंद हो जाएंगे। हम्म, एंड मैंने उनके कार्ड भी देखे थे। हम्म, तो कार्ड में कुछ नेगेटिव तो था, लेकिन मैं उस चीज को जज नहीं कर पाई कि वो नेगेटिव इस हद तक जाएगा। हम्म, बिल्कुल भी नहीं जज कर पाई। मैंने सिर्फ उनको ये कहा था कि आप अपना ध्यान रखो, और मैंने उनको एक मून स्टोन भी बताया था, उसको आप रखो ताकि आपके इमोशंस जो हैं वो आपके कंट्रोल में रहें, और आपको आप ज्यादा सोचो नहीं, क्योंकि ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा ड्रीम आएंगे। हाँ, तो मैंने उस परसेप्शन से सोच के उनको ये कार्ड्स देख के बताया। तो कार्ड्स में भी नेगेटिव, 2 नेगेटिव कार्ड थे। बट मैं रियली में आज मुझे वो होता है कि मैं बिल्कुल भी ये चीज नहीं देख पाई। लेकिन फिर ये सोचती हूँ देख भी लेती तो मैं क्या कर लेती, बता नहीं। क्योंकि जो डेस्टिनी में लिखा है और जो नियति में लिखा है वो वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। वो ना मैं कर सकती हूँ ना अपूर्वा कर सकती है। तो मैं भी उस दौर में ऐसे गुजर रही थी कि मेरे पापा भी उस टाइम हॉस्पिटल में काफी ज्यादा थे। तो मैं भी पापा के कार्ड नहीं देखती थी, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर दिखता था कभी कभार कि पापा को इलाज मिल जाएगा, हम्म, पापा को कोई ट्रीटमेंट। इवन काको भैया से भी बात हुई तो काको भैया ने भी मुझे कहा कि मिलनी चिंता नहीं कर, चाचा जी को डॉक्टर मिल जाएगा, को ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो और इवन चाचा जी भी मुझे हर वक्त यही एक दिलासा, क्योंकि उनके साथ मेरा रिश्ता यही था कि जब भी मैं परेशानी में होती थी, या मैं, क्योंकि मैं खुद से फाइटर थी, तो मुझे ये था कि मैं कहीं परेशान हूँ तो मैं कहाँ बात करूँ। तो हम्म, मैं एक, मेरी तरफ एक चाचा जी ही होते थे जो मैं उन्हीं की तरफ घूम के बात कर लेती थी। तो जब भी मैं बात करती थी वो मुझे हमेशा, उन्होंने मुझे 100% या 200% अपने अपनी हेल्प दी, अपना थॉट्स दिए, अपने सजेशंस दी कि तू ऐसे कर ले, तू ऐसे कर ले। दी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। आई थिंक उनका नेटवर्क
गड़बड़ हो रहा है इसमें। नेटवर्क में प्रॉब्लम। ओके। ओके, तो वो हमेशा मुझे मेरी प्रॉब्लम्स को मुझे सॉल्व करके देना, कोई दान पुण्य करवाना है तो वो करवाना। इवन राहुल के साथ भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब पापा मेरे कम बात डिस्कस करते थे, बट हाँ मैं उन दादाजी को ज्यादा बताती थी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, राहुल के साथ ये प्रॉब्लम है। एंड कई बार उनको आगाज भी हो जाता था कि राहुल के साथ कोई प्रॉब्लम होने वाली है हाँ या मुझे कोई प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि हम दोनों एक ही लगन शेयर करते थे, सिंह लगन, वो भी थे सिंह लगन में भी, तो जनरली एक सी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो जाती थी। तो वो मुझे कई बार कहते थे ये प्रॉब्लम आने वाली है, तू ये ध्यान रखियो। और घर की भी बहुत सारी बातें होती थी, वो मुझे मेरे गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए बोलते थे। मुझे हद से ज्यादा गुस्सा भी कई बार आता था, तो वो कई बार मुझे कहते थे कि तुझे यहाँ पे कंट्रोल रखना है, तुझे यहाँ पे ऐसे बोलना है, तुझे ध्यान रखियो। तो हर चीज का मुझे वो मतलब जैसे फादरली फिगर कहूंगी और मैं फ्रेंड भी कहूंगी, कि क्योंकि दोस्तों की तरह वो समझाते थे कि तूने ऐसे नहीं करना है, तूने ऐसे करना है, ये सही है तेरे लिए, ये गलत है। बिल्कुल एक फेयर मुझे बात समझाना। और हमारी लड़ाई भी होती थी, ऐसा नहीं था कि बहुत सारी बातें सुना भी देते थे और मैं नहीं सुना पाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि चलो कोई बात नहीं, मैं इनकी सुन लेती हूँ, ये कहीं तो कहेंगे। चलो मुझे तारीफ मुझे बहुत बताते थे कि देख मेरे को यहाँ अप्रिसिएशन मिला, मुझे वहाँ अप्रिसिएशन मिला। मुझे भी बड़ी खुशी होती थी कि चाचा जी मुझसे अपनी बातें शेयर करते हैं। हाँ तो ओवरऑल ये कहूंगी कि वो मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी थी कि जो एक्सप्रेस करना अच्छे से जानते थे, अपने आप को एक्सप्रेस करते थे और दूसरों से भी एक्सप्रेस करवा लेते थे, कोई बात निकलवा लेते थे। तो ओवरऑल मेरा रिश्ता उनसे, कई बार ऐसा होता था कि उनका फोन आ रहा है और मैं नहीं उठाती, क्योंकि हमारी पिछले कन्वर्सेशन में लड़ाई हो जाती, तो हम अगले कन्वर्सेशन में हम बात नहीं करते थे। तो वो मेरे अक्सर पापा को फोन करके बोलते थे वो फोन नहीं उठा रही है, मैं इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, तो मतलब मेरी शिकायत भी करते थे पापा से। तो फिर पापा मुझे बोलते थे अरे वो फोन कर रहा तू उठाती क्यों नहीं है, तू बात कर ले। तो फिर मैं उनको कॉल बैक करती थी कि चाचा जी आपका फोन आया था, सॉरी। तो इस तरह का खट्टा मीठा हमारा रिश्ता था। और मेरी तो उनकी यही श्रद्धांजलि है कि मैं उनकी बताई हुई हर बात को, मैं अब मैं गुस्से पे मैंने अपने बहुत काबू पाया है, बहुत कंट्रोल है मेरा गुस्से में, और मैं आगे भी कोशिश करूंगी। लेकिन हाँ, बेसिक नेचर चेंज नहीं हो सकती है, वो तो वैसी ही रहेगी। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि जो मुझे चाचा जी ने सिखाया, जो चाचा जी ने मुझे बताया, और जो हमारे बड़े बोलते हैं, इवन काकू भैया भी हैं, हमारे बड़े हैं और हमारे पापा हैं, तो ये सब जो बड़े कहते हैं वो हमारे भले के लिए कहते हैं। कोई हमारा कोई बुरा क्यों चाहेगा, उनको हाँ क्या मिल जाएगा। तो वो जो जैसा चाहते हैं हम वैसा करें तो हमारे लिए अच्छा ही है। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको बड़े मिलते हैं और सिखाने वाले मिलते हैं जो सिखाते हैं, और हम उनको उनको अमल करें तो हम शायद किसी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला आपने। हमारे बड़े जो हमें सिखाते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है। उस टाइम पे जब वो, मेरे को आज भी याद है, जब वो गुस्सा करते थे या डांटते थे, तो कई बार मेरे को बुरा लगता था कि पापा आप कैसे बोल रहे हो, आप ऐसे कैसे झाड़ देते हो मेरे को, ऐसे कैसे डांट देते हो। आज मैं उसी डांट के लिए, उसी झाड़ के लिए, उसी आर्ग्यूमेंट्स के लिए आज भी उस टाइम लगता है तरस रही, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि मैं भी पापा को जब मेरे 1.5 महीना 2 महीने पापा हॉस्पिटल में रहे, तो मैंने उनको जिस तरीके से मिस किया, आई हम्म, कैन अंडरस्टैंड। ये तो अब तो वो फॉर एवर मिस है, लेकिन हम्म, मैंने जो 1.5 महीना जो मिस किया, वो मैं समझ सकती हूँ कि एक एक फादर क्या होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है लाइफ में। बिल्कुल। मतलब बाप एक ऐसी चीज होती है कि जो थप्पड़ मार के कहता है कि तू गलत है, तू गड्ढे में गिरने वाला है। माँ ने तो हमेशा सिर से कुछ तारना ही है, लेकिन माँ का प्यार अलग है, लेकिन एक बाप की अलग चीज होती है, अलग जगह होती है, जो यार आपको टाइम पे और सही जगह पे आपको बताएगा नहीं तुम गलत हो।
एक्चुअली ना मैं ये सम हाँ एक्चुअली बुजुर्गों का जो होना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बिल्कुल कि भैया, हम लोग खुद फील करते हैं कि यार ये हम किसी से, अब किसी बड़े से सलाह लेते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है यार, हम लेटेस्ट ये। सही कह रहे और हो। कई बार हम सेल्फिश भी होते हैं कि यार हमारे पे बात ना आए, हम बड़े से पूछ के उन पे डाल देते हैं। अच्छा ठीक है यार, मम्मी से पूछते हैं, ये बात मैं मम्मी पे छोड़ थोप देता हूँ हाँ कि उनका फैसला था भाई, मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा या मुझे जरूरत ही नहीं हो रही। अब जैसे पापा का था हमारे, जबकि ठीक है उनको पैरालिसिस था, वो कुछ नहीं कर सकते थे, कमरे में सामने अब तुमने देखा वहां बैठे रहते थे। लेकिन मैं जब भी ऑफिस से आता था, कई बार बहुत परेशान होता था, जैसे ऑफिस से मैं आया हूँ या बड़ों मेरी कभी पहले जॉब की प्रॉब्लम होती थी, सही बात। तो वो मुझे अक्सर एक चीज यही बोलते थे पापा जब थे कि "नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, हाँ, उनका अगर बुरा ये बोलना वक्त, अगर अच्छा वक्त नहीं रहता है तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा"। और सही मैं जब भी ऑफिस से आता था ना, उनके पास जाता था, तो वो मेरे से कहते और भी कैसा रहा, ठीक रहा, मैंने कहा जी ठीक रहा। तो अब क्या होता है कि ये ठीक है यार, हमें हाँ, ये ऐसी बातें उनका करनी। यही कहना हमारे लिए बड़ा इंकरेजमेंट होती है। हाँ, उसमें उसमें क्या होता है कि उसमें देखो, अब हम भी बुजुर्गों की श्रेणी में आ गए हैं, बेटे बड़े हो रहे हैं, मेरे भी जवान हो रहा है, लड़का भी 22-23 साल का, 24 साल का हो रहा है चाहे। तो मेरे को भी अब कभी कभी लगता है कि, लेकिन हमारी आदतें अभी वही है बचपन वाली। तो वर्षा कई बार मुझे टोकती भी है कि भाई बड़े हो जाओ, थोड़े से मिच्योर हो जाओ, कुछ सालों में घर में बहू आ जाएगी। हमेशा रहती है ना। पापा तो इतनी एज में भी मम्मी और हम कहते थे कि आप कैसे बच्चों की तरह बिहेव करते हो, आप कैसे बच्चों की तरह गुस्सा हो जाते हो, खुश हो जाते हो। और उनकी वो थी ना स्पिरिट, हर, आप मानोगे अभी फेस्टिवल्स शुरू हो जाएंगे, अब मम्मी की शक्ल में देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत टूटता है अंदर से कि अब फेस्टिवल्स आने शुरू हो रहे हैं और मम्मी की शक्ल में देखती हूँ वो उदास हो जाती है एकदम से। और मम्मी ने ना बोलना बहुत कम कर दिया है अब, पता नहीं, एकदम से जैसे बिल्कुल बात एक्चुअली करना देखो बंद हो देखो गया ऐसा होता है कि लाइफ पार्टनर का जाने का लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है। है, हाँ हाँ क्योंकि लाइफ पार्टनर ही आपको समझता है। अब ये जो तुम त्योहार की बात कर रही हो कि वो बड़े एक्टिव थे त्योहारों में, हाँ उसकी एक वजह ये भी है कि हम लोग जॉइंट फैमिली में थे। हाँ हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली में दिवाली बड़ी उससे मनती थी, हमें, मेरे को तो पता है क्योंकि मैंने तो बचपन से हाँ देखी ये बिल्कुल, सारी चीजें जॉइंट फैमिली में, है हाँ ना। की तैयारियां करते थे, हमारे खुद से दादाजी तैयारी, तैयारियां करते थे। हाँ तैयारी होती थी। भाभी थी मोरी गेट में, तो वहाँ पे तैयारी होती थी। तो शुरू से बीनू चाचा जी को, हम सबको यही था। हम्म, ठीक है। सो मैं थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर योर टाइम। काफी और लंबा हो गया ना। थैंक यू टू, कोई बात नहीं, थैंक यू टू डॉक्टर तृप्ति की हमारी फैमिली के जो मेंबर्स पापा से अभी आजकल बहुत क्लोज थे, थैंक यू। उनका मतलब हम शेयर कर पाए और थोड़ा बहुत जो हमारे मन में था वो हम एक्सप्रेस कर पाए। थैंक यू सो मच। And I'm sure your miscarriage also had a higher purpose. Yeah, What do you feel? share about this. I actually know why this happened. And I don't understand why people think that talking about miscarriage is not good, it's a taboo, it's not right. I don't understand. And I completely believe that it's humanly that it happens and it's very normal. It happens to almost 1 in 5 women, and it's okay to talk about it. First of all, I want to make people aware that there is nothing wrong if anything like this happens. You can talk about it. So don't be afraid of anybody's judgment. Secondly, the spiritual connection that I found about this was that in September last year, I remember mentioning it to you that 26th September 2020, I remember telling you that my brother did something naughty again. His soul communicated again, and he was trying to convey a message by playing my daughter's toy right at the midnight. Yes. A toy which was switched off, and right at 12 a.m. the toy started playing happy birthday to you, and it was my dad's birthday, 26 September and midnight. And that from that night I knew that my brother's soul is again around, and he's around me and he's trying to communicate something.
And then I spoke to some tarot card readers and some mediums also, some powerful mediums, and they told me that he's around and he wishes to be born again. And this time he wishes to be born via you. So, and I fell sick because I was very emotionally upset, and I don't know why I got so sick at that time. And they clearly told me that he has accepted you as his mother. So now there is some leftover karmic connection that he has to take from you. तब तक वो move on नहीं करेगा. So you need to help him get this done. And I was very upset that I am not ready to plan another baby right now. I don't wish to plan. Right now is not the time. I have my career. I have to look after Advita. I'll let her be at least 4 years old and then I'll think of second child. But in April this year, I was detected with COVID and I saw that I was pregnant. I was very afraid that, oh my God, I have severe COVID and conceived as well. And the only safe medicine to take is Crocin, paracetamol. So I was not really sure of this baby. I was not. I was getting messages that this will not be the outcome will not be what people think it will be. It won't be. I might have to think of other options. But then I started accepting it that okay, maybe it's God's will and maybe this child is strong. And I started practicing affirmation that my baby is strong, my baby is healthy, my baby is beautiful. I started practicing affirmation for pregnancy with the hope that okay, Papa chale gaye hain, maybe a new family member will come and things will change again. I had that hope. But on 10th May, I got my ultrasound and there was no heartbeat in the fetus. Again, very disheartening and very, very heartening. And again, I had no emotions. I was not crying. I was not in grief. I was like, okay, कोई बात नहीं. इसके पीछे कुछ बहुत अच्छा है reason. And after few weeks, after a month, जब मेरा DNC वगैरह हो गया, उसके बाद मेरे को मैसेज मिलता है सपने में that it was Anupam who wanted to be born as my child. And उसने अपने कुछ weeks का हिसाब किताब पूरा किया और he has moved on. He has transitioned now. And when I shared this thing with Abhilasha Di, that day I was speaking with Abhilasha Di, I was very low and very sad. And one of her WhatsApp status, I messaged her. Then she said, can I speak with you? And she also spoke to me on call and made me understand that it's okay to be sad. It's okay to be in grief, but you will come out of it. She also said कि ये जो थोड़े टाइम के लिए आया था बच्चा वो ready नहीं था. Maybe that soul will be born when you will be ready, or maybe it was Anupam who came for a little bit of time जो रह गया था मेरे साथ कर्मा और वो पूरा हो गया. Correct. There can So be many ये reasons. भी There can be Yes. many reasons, yeah. One is that you were not ready. yes. तुम भी तैयार नहीं थी to have another child. That is one. Second, he may also have felt that because the physical body has got COVID, there could be some impact on him. Because we know that in his previous birth as your brother, the soul did have problems. Yes. Right? So he doesn't want to have a physical body which is in Again. any way damaged. Yes, That's he the had a second congenital reason. heart issue. Correct. So he did not want that. That's the other reason that maybe the soul could have left the body, Right. the body, and then said, "Okay, let me come later." And the third reason, like you rightly said, could be that he had some unfinished trauma which he needed to completely experience in the womb itself. So that when he's born again now, when you conceive again and he comes again, you are healthy,
Yes. The womb, the space is healthy, Yes. and he is ready. Yeah. So there could be multiple reasons why people have miscarriages. And one of the reasons is that the parents are sometimes not ready. They Not could be not ready financially, socially, physically, in so many different ways, or they feel that, Array, we will not be able to give our child the best. mm, There could be millions of thoughts, and that's why I always tell people that karma is not only mm. action and thought, Yes. Thought action is and very powerful. feeling, Right. action and intention, Mm. and action and desire. You can have karma in various different ways, and we have to understand each one of this because it's a Right. very complex mechanism. It's not a very easy mechanism to understand in life. So, Apurva, some last few wise words of all the understanding and the insights that you have got, and how are you going to take your life forward now? Okay. Uh, Honestly, ma'am, I have learned a very big lesson to take life as it comes and to slow down, to live, to be grateful, and to not plan anything. Just live life like it is and just live like life one at a time, one thing, one step at a time. And uh, we cannot hold anything as knowledge or wisdom like a box in our mind that we have a treasure of wisdom or we know everything from the past. There is so much more to learn, there is so much more to know, and there is just one thing that is true: uncertainty. And that's what COVID taught us. Life is uncertain, life is very unpredictable. So I am training to come out of fear and live without fear. I'm training and I'm learning. I 'Cause love that, what you this just said. incident Yes. and this Learning incident to kind of shook, come out of fear. yes, Yeah. fear. And I'm looking forward to December really much because I want to experience things, to learn how to purify my soul and how to reach my higher self, because I am happy when I am closer to my higher self, and it's very difficult to stay disconnected from my own higher self. Which So is I'm wonderful. looking forward. Yes, I'm also looking forward to meeting you, Apurva, in December. And I think this Yes. discussion was very intense on a topic that is very important for people to understand and know. And I can only say that whether you're a pauper or you're a prince, राजा हो या रंक, हम सबको जाना है. एंड जाने से पहले हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हमें Hmm. थोड़ा ध्यान देना है. What are we doing while we are in this physical form, in this physical body, in this physical world? इसके ऊपर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, because जब मौत आएगी तो हमारे पास वक्त जी. नहीं होगा. We will not Hmm. have the time to reflect at that moment. So, whatever time we have, please learn to reflect. Please learn, what are you doing? Are you being kind? Are you being unkind? Are you being compassionate? Are you being jealous, envious? Look at the emotions, that emotion का पिटारा जो आपने Hmm. दबा के रखा है अपने अंदर से, वहां से क्या क्या Hmm. निकल रहा है बाहर. आपके पास सभी तरह की भावनाएं हैं, सभी तरह के इमोशंस हैं, बट व्हाट आर यू Huh. एक्सप्रेसिंग? Are you expressing anger? Are you expressing jealousy? Are you expressing disappointment? Are you Hmm. expressing kind of rejection? What are you Hmm. expressing? Because you have all the emotions, नवरसा, सब है आपके पास. पर जी. आप क्या आप उसमें से क्या निकाल रहे हैं? दैट इज योर बिल्कुल. चॉइस. ये आपकी चॉइस है. फ्री विल के बारे में हम हमेशा बात करते हैं. When we started this session, we spoke about death and how it is decided. But from birth to death,
कहते from womb to tomb, there are so many opportunities that we lose out on to be kind, to be compassionate, to be caring, to share, to love. कितनी सारी opportunities हैं आपके पास, right? आप उन opportunities का फायदा Right. लीजिए. And you will see that when you go to your tomb, जब आपका वक्त आएगा जाने के लिए, then you will be just like Apurva's father, without an ego. And that's when Sai can come to you. So I pray that we all live like Apurva's father, doing work, karm kiye ja, and phal ki ichha mat kar, exactly right, like her dad had done. And so he was able to transcend and transit so beautifully. So thank you, Apurva, my dear. I Thank love you, you ma'am. and take care of yourself, okay? And see Thank you you so soon. See you, ma'am. Thank you so much. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः